Hello friends. So today we begin with the third lecture of this topic called Bill of Exchange. अब तक हमने Bill of Exchange के important concepts पढ़ लिए हैं, but we haven't seen any of the journal entries yet. So this lecture onwards we are going to see how the journal entries need to be passed in the books of various parties. Let us begin our discussion. Look what is written on the slide. Treatment of bill till maturity date. तो हमें ये देखना है कि मैच्योरिटी डेट या इसे ड्यू डेट भी कहते हैं, ड्यू डेट तक बिल की ट्रीटमेंट कैसे होती है. सपोज दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ देयर कैन बी वेरियस ways in which the bill can be treated. Let us see what are those ways. First is retention. The bill is retained till the maturity date. Next is endorsement. It is endorsed before the maturity date. Discounting with the bank. The bill is discounted with the bank before the maturity date. Bill sent to bank for collection. The bill is sent to the bank for collection before the maturity date. Now obviously you are not going to understand what all that appears on the screen by just looking at the slide. You will need further explanation. तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. Now let us assume that the bill has a lifespan. Alright, the bill has certain lifespan. Let me draw the timeline over here. Okay, suppose this is the lifespan. This is date of drawing. Alright, this is date of maturity. ये जिसे हम लोग ड्यू डेट भी कहते हैं. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ये बिल का जन्म हो गया, ये बिल का अंत हो गया. अभी उसके जीवन काल में, उसके लाइफ स्पैन में उसके साथ कुछ हादसे होते रहते हैं. तो क्या है वो हादसे? रिटेंशन. ऑलराइट, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये चार हादसे उसके साथ हो सकते हैं. These are the four ways in which the bill can be treated. Today we are going to see retention and endorsement. Alright, now let me explain it to you in yet another way. Now since yesterday, since we are learning the concept of due date, ये चार पॉइंट्स मैं बार बार लिख रहा हूं. इसका रेलेवेंस आप समझ लो. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. आगे जब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा तभी भी ये जो सीक्वेंस है ये बहुत रेलेवेंट रहेगा. बेस्ड ऑन इट वी पास द जर्नल एंट्रीज. इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ये आपके लिए इजी हो जाएगा. देन कम्स डेट ऑफ ड्रॉइंग. Yesterday if you have noted it down, by now you should be knowing very well what the sequence is. Then comes date of acceptance. All right, and then the due date. अब देखिए रिटेंशन. मैं आता हूं उस फ्लो पे वापस. पहले रिटेंशन समझ लो. रिटेंशन का सिंपल मतलब ये है कि कीपिंग समथिंग इन योर पोजेशन, रिटेनिंग इट, कीपिंग इट इन योर पोजेशन. तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके तो ड्यू डेट तक, जब तक बिल मैच्योर होता है, द मेकर ऑफ द बिल, द ड्रॉवर रिटेन्स द बिल. Okay, drawer retains the bill. He does not
give it to anybody else. Drawer retains the bill. This is the simple meaning of retention of bill. Let us understand it by way of another slide. Now retention till maturity, how this affects the books of drawer as well as drawee. मैं आपको ड्रॉप डाउन के चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा. आप ये देख लो. फर्स्ट देयर इज सेल, देन द सेलर ड्रॉज द बिल एंड ऑन द ड्यू डेट देयर इज ऑनर और डिसऑनर. ड्रॉई के लिए भी सेम होगा. अगर ड्रॉअर के लिए सेल होगा तो ड्रॉई के लिए परचेज होगा. ही विल एक्सेप्ट द बिल विच इज ड्रॉन बाय द सेलर एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल विल बी ऑनर्ड और डिसऑनर्ड. तो प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने सीक्वेंस लिखा था वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं. फर्स्ट आई राइट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. इट विल बी सेम फॉर बोथ द पार्टीज. दोनों के लिए ये नंबर 1 हो गया. नाउ सेकेंड, डेट ऑफ ड्रॉइंग, date of drawing of bill. All right, and third is date of acceptance. Normally the bill is drawn on a different date and it is accepted on a different date. And fourth is honor dishonor of bill, जिसको हम लोग बोलते हैं due date. अब तक हमने इसको कहा है due date. ड्यू डेट दोनों के लिए भी ये सेम ही होगा. ऑलराइट, नाउ इफ यू अंडरस्टूड द सीक्वेंस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पास द जर्नल एंट्रीज. ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसी ट्रांजैक्शन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज. सो सी हियर वी हैव 2 columns. Journal entries in the books of drawer as well as drawee are shown to you. अगेन मुझे इसको नंबर कर लेने दो. यर दिस इज 1, 2 and 3 दोनों यहाँ पे है. डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड दिस इज 4. नाउ ऑनर डिसऑनर, देयर विल आइदर बी ऑनर और देयर विल आइदर बी डिसऑनर. दोनों में से एक ही केस होगा. दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे. तो लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज. पहली जो जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, it is a simple journal entry of sales and purchase. This person is the seller and this person is the buyer. So on the date of transaction, this person, drawer, seller, he has passed an entry for sales. All right, and this person has passed an entry for purchase. Look, if the entry is right, drawer account debit to sales account. And in the books of drawee, purchase account debit to drawer account. ठीक है. अगर हम लोग नॉर्मल कोर्स में जर्नल एंट्री पास करें तो ड्रॉई की बजाय हम लोग इसको यहाँ पे पार्टी कहते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं. बट सिंस स्पेसिफिक टर्म्स इनके लिए है ड्रॉवर ड्रॉई, तो हम लोग वो यूज करेंगे. अभी एक बात समझिए, इसको थोड़ा गोल्डन रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो इफ देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन देयर विल बी अ क्रेडिटर एंड देयर विल बी अ डेटर. सो उस हिसाब से दीज आर द बुक्स ऑफ क्रेडिटर, दीज आर द बुक्स ऑफ डेटर. ऑलराइट, तो अभी यहां पे देखिए, ये ड्रॉई जो है ड्रॉवर का डेटर है, इसलिए ड्रॉई अकाउंट यहां पे डेबिट हो गया. डेटर आर करंट असेट, असेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. देखिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो गया. नाउ दिस पर्सन इज डेटर, इसकी बुक में क्रेडिटर का नाम आएगा. ड्रॉवर इसका क्रेडिटर है. तो देखिए क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस. यहां पे ड्रॉअर अकाउंट क्रेडिट हो गया. तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से भी दिस एंट्री इज करेक्ट. नाउ सेकेंड एंट्री दैट वी पास is on the date of drawing.
drawer will draw a bill of exchange. He will write bills receivable account debit to drawee account. Now why bills receivable account is debited? Okay, bills receivable account is debited because bills receivable is a current asset. Against it you have to receive money, so it is a current asset. Assets have debit balance, so bills receivable is debited to drawee account. ऑलराइट, टू ड्रॉई अकाउंट. अब यहाँ पे सिंपली क्या हो गया देखो, ऊपर जो करंट असेट हमारा जनरेट हो गया था ड्रॉई, उसको हमने चेंज कर दिया है बिल्स रिसीवेबल में. ये भी करंट असेट है, ये भी करंट असेट है, तो दो करंट, एक ट्रांजैक्शन के लिए दो करंट असेट बुक्स में नहीं रख सकते. तो सिंपली ड्रॉई हैज चेंज इनटू बिल्स रिसीवेबल, और पहले इसको डेबिट हो गया था इसलिए अभी इसको हमने क्रेडिट कर दिया है. तो ये गोल्डन रूल्स के हिसाब से आप एंट्री समझ लो. सेम विल हैपन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. ओके, दिस विल बी द थर्ड एंट्री. दिस विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखिए ड्रॉअर यहाँ पे लाइबिलिटी था, बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है. सिंस बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, इट इज credited. Liabilities always has credit balance. ओके, सो ये देखिए, ये जो क्रेडिटर था इसको बिल्स पेएबल में कन्वर्ट कर दिया है, और यहां भी क्रेडिटर, यहां भी क्रेडिटर, दो क्रेडिटर नहीं रख सकते सेम ट्रांजैक्शन के लिए, इसलिए इसको डेबिट दे दिया. दिस क्रेडिट एंड दिस डेबिट, द इफेक्ट इज नलिफाइड. ओवर हियर this debit and this credit, the effect is nullified. तो अभी ड्रॉवर की बुक्स में बच गया सिर्फ बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई की बुक में बच गया सिर्फ बिल्स पेएबल. नाउ लेट अस कम टू द ड्यू डेट. द फोर्थ स्टेप इन दिस सीक्वेंस इज ऑनर और डिसऑनर. अगर ऑनर हो गया मतलब पेमेंट कर दिया तो उसे कहते हैं ऑनर. Now if the bill is honored, seller will receive his money cash. Cash is a real account. Debit what comes in. इसलिए कैश यहाँ पे डेबिट कर दिया. ये जो बिल्स रिसीवेबल ऊपर ओपन हुआ था वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया. ओके, दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये जो लाइबिलिटी यहाँ पे ओपन थी वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दी टू कैश अकाउंट. राइट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको कैश मिल रही है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. इसकी कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. ऑलराइट, इफ इन केस द बिल इज डिसऑनर्ड, अगर बिल ऑनर नहीं होता है तो वो डिसऑनर हो जाएगा. द बिल विल नॉट बी पेड. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल हमने क्रिएट किया, इसको सिंपली हम रिवर्स कर देंगे. मतलब बिल्स रिसीवेबल को हम लोग वापस डेटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्स पेएबल को हम लोग वापस क्रेडिटर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, सो सी व्हाट एंट्री विल बी पास्ड. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दिस पर्सन अगेन बिकम्स द डेटर. Bills payable account debit to drawer account, this person again become the creditor. Okay, और एक मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका समझाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कोरिलेट दिस एंट्री विद दिस एंट्री. ड्रॉन और एक्सेप्टेंस की एंट्री और डिसऑनर की एंट्री को डिसरिस्पेक्ट कोरिलेट कीजिए. देखिए this entry is exactly reverse of this entry. यहां पे हमने डेटर को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट किया था, यहां पे हमने बिल्स रिसीवेबल को वापस डेटर में कन्वर्ट कर दिया. एंड ऑल्सो लुक दिस एंट्री एंड दिस एंट्री. तो डिसऑनर की जो एंट्री है वो एक्सेप्टेंस की बिल्कुल रिवर्स है. यहां पे हमने क्या किया था
ये जो क्रेडिटर है इसको बिल्स पेएबल में कन्वर्ट कर दिया था, अभी डिसऑनर हो गया, इसलिए हमने बिल्स पेएबल को वापस क्रेडिटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही सीक्वेंस में आपको एंट्रीज पास करनी है व्हेन वी विल सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम, उस वक्त आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस गो टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। I have this problem in front of you. This problem is taken from your textbook. This will probably the fourth illustration I guess in your textbook. आप ढूंढ लो रिटेंशन का, जहाँ पे कंसेप्ट समझाया हुआ है उसी के नीचे ये इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन है, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी विल solve it and see. I hope you are able to see the question on the screen. Let us see, let us read the illustration. Illustration मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, question यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ concentrate करो। On 1st June 2019, प्रताप sold goods to सुजीत worth rupees 82,000. तो अभी यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, sold goods, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट इज ऑल्सो गिवन टू यू, तो हमारे सीक्वेंस में ये हो गया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months फॉर 82,000 rupees, राइट। सो बिल इज ड्रॉन, डेट इज नॉट गिवन, बट देन द सेकेंड इवेंट इज ड्रॉन। अभी ये स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रताप ड्रू अ बिल एंड देन सुजीत एक्सेप्टेड द बिल, यहाँ पे सीधा लिख दिया सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप। तो जाहिर सी बात है जब बिल ड्रॉ होगा तभी एक्सेप्ट होगा, तो एक्सेप्ट करने से पहले बिल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में मेरी तीसरी स्टेप है एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट, एंड देन ड्यू डेट। ठीक है, तो अभी हमें यहां पे केसेस दी गई है, वेरियस केसेस आर गिवन टू अस। पहले बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का भी मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। अब हम लोग इसे एक एक केस वाइज सॉल्व करेंगे। सिंस देयर आर मल्टीपल केसेस, let me first extend the table. Okay, you draw the format. First we are going to see this case, bill is honored on the due date। तो आपको जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, आपको दोनों पार्टीज की बुक में जो है जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आप दो जर्नल के फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो पहले केस के लिए आप जल्दी से ड्रॉ कर लो। तब तक मैं भी मेरा फॉर्मेट सेकंड केस के लिए यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। Alright, this is where we will solve our second case. क्विकली ड्रॉ करना है, फॉर्मेट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रफ वर्क जैसा भी आप कर लो तो भी चलेगा। सो लेट अस बिगिन। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, हमें नाम देना पड़ता है पार्टीज का इन द बुक्स ऑफ प्रताप। दिस इज जर्नल,
right? Who is Pratap? Pratap is the drawer. He is the seller. He is the creditor. Come to the table below. दूसरे इंसान की बुक्स भी हम लोग बना लेते हैं. उसका नाम हमें दिया था सुजीत. In the books of Sujit, journal, सुजीत जो है वो ड्रॉई है, इसके ऊपर बिल बना है, वो बायर है और वो डेटर है. उसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे और उसको पैसे देने हैं. तो व्हाट इज आवर फर्स्ट इवेंट इन द सीक्वेंस? इट इज ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं ट्रांजैक्शन की पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो ड्रॉवर के बुक में कौन सी एंट्री पास होगी? सेल्स की एंट्री पास होगी. ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रॉई ओवर हियर? सुजीत. सो आई विल राइट सुजीत्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, और यहां पे मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 82,000 rupees. The transaction is happening for 82,000 rupees, right? एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए, गुड sold goods to Surjit worth rupees 82,000. Let me just check this pen. Change the pen. I don't know why it is giving me two shades while writing. ठीक है, अभी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने ड्रॉअर के बुक्स में पास कर ली. अभी साइमल्टेनियसली हम लोग इसे ड्रॉई की बुक्स में पास करते हैं, राइट? इसके लिए ये परचेज है. सो लेट मी राइट परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज इज एन एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस टू प्रताप अकाउंट. प्रताप इज अवर क्रेडिटर. नरेशन में यहां पे लिख देता हूं, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट 82,000. अब मुझे बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट step in our sequence? Our next step is drawing. The bill is drawn. This person will draw the bill. So what we are going to write? Bills receivable account. Since it is a current asset, we are debiting it. Bills receivable account debit to Sujit's account. ऊपर जो हमने डेटर क्रिएट किया था उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड डेटर इनटू बिल्स रिसीवेबल. नरेशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बीइंग बिल
drawn, all right, for the same value 82,000. अभी simultaneously entry also needs to be passed in the books of ड्रॉई. हमारा अगला स्टेप क्या है सीक्वेंस में? एक्सेप्टेंस. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेंगे. क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे? प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राइट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग द बिल एक्सेप्टेड. ये हमारा नरेशन हो जाएगा, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड. तो देखिए बिल्स पेएबल लायबिलिटी है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया. ऊपर जो हमने क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिटर हमने ओपन किया था उसको हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया डेबिट करके, राइट. अगेन फॉर द सेम वैल्यू 82,000. ठीक है. नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इवेंट्स हमने देख लिया हमारे सीक्वेंस में. ट्रांजैक्शन, ड्राइंग, एक्सेप्टेंस देख लिया. अभी ऑन द ड्यू डेट, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ड्यू डेट? द बिल इज ऑनर्ड, मतलब द पेमेंट इज मेड. सो इसे कैश मिलने वाली है. हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट. बिल के अगेंस्ट कैश मिली है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ऊपर जो हमने करंट असेट ओपन करके रखा था ऊपर की एंट्री में, अभी पैसे मिल गए हैं तो उसको बुक्स में ओपन नहीं रख सकते इसलिए उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया. ये देखिए, ये डेबिट, ये क्रेडिट इफेक्ट, ये क्लोज हो गई एंट्री. बीइंग द बिल ऑनर्ड, राइट, 82,000 and 82,000. ठीक है. नाउ दिस विल अफेक्ट द बुक्स ऑफ ड्रॉई एज वेल. ड्यू डेट में बिल ऑनर हो रहा है तो उसकी एंट्री हमको ड्रॉई के अकाउंट में भी करनी पड़ेगी. नाउ लेट मी शो यू द एंट्री. द एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट. सिंस द कैश इज पेड अगेंस्ट दिस बिल, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई इसलिए हम लोग रिवर्स कर रहे हैं. ऊपर क्रेडिट किया था, यहां हम लोग उसको डेबिट कर रहे हैं. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. कैश हमारी बाहर जा रही है इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, राइट. एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर सॉल्यूशन. इतनी 3 एंट्रीज आपको पास करनी है in the books of each party, right. So I will show you the journal entries. Quickly take the screenshot if you have not finished writing. These are the books of drawer. These are the books of drawing. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलराइट. इसका नरेशन लिखना बाकी रह गया. बीइंग बिल ऑनर्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट केस? द बिल इज डिसऑनर्ड. और हमने एक्सप्लेनेशन के वक्त देखा था इफ द बिल इज डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस नीड टू बी पेड. बट ये जो केस है ये विदाउट नोटिंग चार्जेस वाला है तो इसमें हम लोग सिर्फ डिसऑनर की ही एंट्री देखेंगे. ठीक है. आप फिर से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ 2 journals in the books of parties, both the parties.
one format of journal in the books of each party. ठीक है, फॉर्मेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मेट जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है। वापस मुझे लिख लेने दीजिए यहाँ पे डिटेल्स। लेट मी ब्रिंग इट टू फुल स्क्रीन मोड फॉर यू। बाजू का प्रॉब्लम आप भूल जाइए, इस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, सो दिस इज केस बी, बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज dishonored. All right, these are the books of Pratap. In the books of Pratap, जर्नल। अब तक आपको पता चल गया होगा प्रताप कौन है, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर। नीचे मेरे पास और बुक्स है, वो है ड्रॉई की, इन द बुक्स ऑफ सुजीत, इन द बुक्स ऑफ सुजीत जर्नल। ठीक है, तो अभी हम लोग सीक्वेंस याद करते नहीं बैठेंगे, अभी इसको लिखेंगे नहीं हम लोग। आपको अब तक पता होना चाहिए फर्स्ट एंट्री इज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये सेलर की बुक्स है, सेलर की बुक्स में आप क्या एंट्री पास करोगे, सेल्स की एंट्री पास करोगे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पार्टी कौन है यहाँ पे, सुजीत। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ओके, ही इज द ड्रॉई, टू sales. Sale is our income, debit the expenses, credit the incomes. इस लॉजिक से हमने ये एंट्री पास कर ली। Being goods sold on credit, ठीक है। अमाउंट हमारी है 82,000, अमाउंट है 82,000, right? So this event affects the books of ड्रॉई as well. बायर की बुक्स में भी हमें एंट्रीज पास करनी है, तो लेट अस पास द एंट्री फॉर परचेज। ये बायर है तो इसके बुक में परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, हु इज द पार्टी, प्रताप, और टू ड्रॉअर अकाउंट, राइट, ही इज द ड्रॉअर। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। 82,000, 82,000, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। मैं साइमल्टेनियसली एंट्रीज पास करना आपको सिखा रहा हूं, यही आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट इवेंट इन दिस सीक्वेंस इज ड्रॉइंग ऑफ बिल। सो दिस पर्सन ड्रॉज द बिल, हम लोग लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, ठीक है। हमने सिंपली डेटर को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया है, ऊपर जो डेबिट हुआ था उसको हमने नीचे क्रेडिट देके क्लोज कर दिया है। बीइंग बिल ड्रॉन,
ठीक है, 82,000 नरेशन शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको। अभी ड्राइंग के बाद होता है एक्सेप्टेंस। आई हैड टोल्ड यू until and unless the bill is not accepted it does not have any validity। तो यहां पे मुझे लिखने दो एक्सेप्टेंस की एंट्री, प्रताप अकाउंट डेबिट, these are the books of drawing। to bills payable account, to bills payable account। नरेशन में यहां पे लिख देता हूं being bill accepted, ठीक है। तो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद आता है ड्यू डेट। ओके, सो फॉर दिस वी विल गो बैक टू द बुक्स ऑफ ड्रॉअर अगेन। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ड्यू डेट? नाउ इज द बिल गेटिंग पेड? नो। सी व्हाट द केस इज, बिल इज डिसऑनर्ड, द बिल इज नॉट पेड। तो हम लोग डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। अभी यहाँ पे आप और अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, डिसऑनर की एंट्री हमें पास करनी है, मतलब क्या करना है, ये जो बिल ड्रॉन है ये सिंपली हमको रिवर्स करना है। तो देखो मैं वापस क्या करता हूं, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। शॉर्टकट नहीं लिखना है, पूरा बिल्स रिसीवेबल आपको लिखना है 82,000। मैंने क्या किया, सिंपली एक्सेप्टेंस की एंट्री मैंने, सॉरी ड्राइंग की एंट्री मैंने रिवर्स कर दी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। समझ गए? देखिए ये पर्सन, ये जो बंदा है ये वापस से डेटर की पोजीशन में आ गया, because now he is again liable to pay। Same happens in the books of drawing। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है, तो ये जो एक्सेप्टेंस की एंट्री आपने यहाँ पे पास की है इसको सिंपली आपको रिवर्स करना है। तो चलो इसको रिवर्स कर देते हैं। डिसऑनर की एंट्री हम लोग पास कर देते हैं बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। एक्सेप्टेंस की एंट्री हमने रिवर्स कर दी। नाउ दिस पर्सन अगेन बिकम्स हर क्रेडिटर, क्योंकि इसको हमें पैसे फ्यूचर में देने पड़ेंगे। नरेशन यहां पे लिख दो बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, 82,000 ये हो गया हमारा सेकंड केस सॉल्व। ठीक है, मैं आपको ऊपर ले जाता हूं। आई विल गिव यू सम टाइम। आपने अगर लिखा नहीं है, अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दीज आर द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। नीचे ड्रॉइंग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द ड्रॉइंग। वैसे सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, अगर मेरी हैंडराइटिंग किसी को समझ में ना आए तो वो टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए चाहे तो ये वीडियो रेफर कर ले। अभी वी हैव टू सॉल्व द लास्ट केस गिवन टू अस, दैट इज bill is dishonored, bill is dishonored and noting charges paid, and noting charges
आर पेड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि whenever the bill is dishonored it has to be noted। नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 250 रुपीज। नोटिंग चार्जेस नीड टू बी पेड। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में मैं यहां पे लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ प्रताप। journal. So far we are only looking at solving of journal entries. Next, I also have to parse journal entries in the books of drawing. तो मुझे उसकी भी बुक्स में लिख लेने दो। इन द बुक्स ऑफ सुजीत जर्नल। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तो आपके लिए बिल्कुल ये केक वॉक हो जाना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें पास करनी है। दिस पर्सन इज द सेलर, ही विल पास द एंट्री फॉर सेल्स। सुजीत अकाउंट डेबिट, ये ड्रॉई है। टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स sold on credit, 82,000 and 82,000। ड्रॉई की बुक्स में हमें परचेस की एंट्री पास कर लेनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी बुक में परचेस की एंट्री आ जाएगी। सो परचेज अकाउंट डेबिट, टू प्रताप अकाउंट, this person is the drawer, being goods purchased on credit। ठीक है, 82,000 एंड 82,000। देखिए मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे एक बहुत ही फेवरेट सर थे, वो कहते थे प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एंड चाइल्ड परफेक्ट, विच साउंड्स लॉजिकल। एनीवे, लेट अस कंटिन्यू। दूसरा है डेट ऑफ ड्रॉइंग। बिल जब ड्रॉ होता है तब हम लोग ड्रॉअर की बुक्स में एंट्रीज पास करते हैं। दीज आर द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे पास करता हूँ। ये जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये हट गया। यहाँ पे मैं एंट्री पास कर लेता हूँ। बिल ड्रॉन की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये मेरा असेट हो गया। टू सुजीत अकाउंट, ऊपर जो मेरा डेटर बना था सुजीत,
उसको मैंने रिवर्स करके क्लोज कर दिया क्योंकि बिल्स रिसीवेबल मेरा यहाँ पे नया असेट बन गया। बीइंग द बिल ड्रॉन 82,000 and 82,000। ठीक है, साइमल्टेनियस एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग। यहाँ पे ये ड्राइंग की एंट्री पास नहीं करेगा, या एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा। सो लेट अस से प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ऊपर प्रताप जो क्रेडिटर हमने ओपन किया था उसको साइमल्टेनियस डेबिट देके हमने क्लोज कर दिया। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, जो मैं कह रहा हूं वो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे उसको समझ लो। अभी आती है ड्यू डेट की बारी। ड्यू डेट पे क्या हुआ है? बिल डिसऑनर हुआ है। तो बिल डिसऑनर हुआ है मतलब मुझे सिंपली यहां पे ये एंट्री रिवर्स करनी है। तो चलो मैं ये एंट्री रिवर्स करता हूं, बट एक चीज अभी ध्यान रखो, यहां पे आपको नोटिंग चार्जेस पास करने हैं। ठीक है, नोटिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए आप क्या करो, एक लाइन छोड़ के ये एंट्री पास करो, बीच में एक लाइन छोड़ दो। चलो ये एंट्री डिसऑनर की पहले मैं पास कर लेता हूं। ये जो बिल ड्रॉन की एंट्री मैंने की है इसको मैं रिवर्स कर लेता हूं। तो देखो ये एंट्री मेरी हो जाएगी सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अभी नोटिंग चार्जेस आर 250, राइट। तो नोटिंग चार्जेस का मैंने आपको कंसेप्ट कैसे समझाया था? इट इज पेड बाय द होल्डर पहली बात, और दूसरी बात रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई। ठीक है, तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है। पेड बाय द होल्डर जो है मैं यहां पे लिख देता हूं टू कैश। ठीक है, अभी इसने पे किया है तो हिज कैश इज गोइंग आउट, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कैश, राइट। मेरा बिल ओरिजिनली कितने का था? 82,000 रुपीज का, उसमें मैंने पे कर दिए 250 नोटिंग चार्जेस। सुजीत अब लायबल हो गया 82,250 हमें पे करने के लिए। ठीक है, लेट अस कम डाउन, लेट अस कम टू द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई की बुक में देख लेते हैं ये एंट्री कैसे पास होगी। हमारा नेक्स्ट इवेंट है सीक्वेंस में ड्यू डेट। ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो रहा है, हम लोग है ड्रॉई की बुक्स में। डिसऑनर में सिंपली एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स करनी है। तो चलिए मैं पहले एंट्री रिवर्स कर देता हूं। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू प्रताप अकाउंट। ओके, टू प्रताप अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर।
ये मेरा नरेशन है। अभी देख लो, मैंने आपको कहा इट इज रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई, रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई, देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंस ऑफ ड्रॉई। और एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? वी डेबिट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैं यहां पे डेबिट कर लेता हूं नोटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट लिख लेते हैं 82,000, नोटिंग चार्जेस आर 250। प्रताप को इसको देने हैं 82,250 रुपीज। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सुजीत से इसको लेने थे 82,250 और यहाँ पे इसको प्रताप को देने हैं 82,250। तो ये हमारा टैली हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट रिटन द प्रॉब्लम, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। These are the books of drawer and below are the books of drawing। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन में हम लोग गुने ऑनर डिसऑनर दोनों देख लिया, डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस भी हमने देख लिया। सो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं हमारी कवर हो चुकी है। Now in the next lecture we will see what endorsement is. Till then keep revising and keep practicing.